Okay, so you want to, class, pay attention. So you want to get some steady income for 25 years. Okay, 25 years. Annually आपको मिलनी चाहिए, ठीक? Sorry, for 12 years. 25 फिर कहाँ पे लिखा था? 12 years. So let's make it 12 years, and 25,000 is the amount. Asha ji, and wishes to purchase an annuity that will provide him with a steady income over the next 12 years. He has heard that the local savings and loan association is currently paying 6% compound interest on an annual basis. 6% on an annual basis. If he were to deposit his funds, what year-end equal dollar amount to the nearest dollar would he be able to withdraw annually, such that he would have a zero balance after his last withdrawal 12 years from now? So he's making withdrawals at the end of year. So that makes it ordinary annuity. Okay. But you do not know R. So that means you need to find R. So Sikandar, what's wrong with this thing? And why is it difficult? What is the formula? Sorry, not Sikandar, Anas. Who said, sorry, Ali, aapka question. So what is the problem in this one? You already know the present value. Take. So present value of annuity equals R into PV IFA with I and N. Now according to the table, you need to get this value, this factor for I, which is 6%, and for N, which is 12 years. So 6% and 12. You move to 6% and 12. For that you need to go to the table. 6% and 12. Table for PVIFA, which makes it table number 4, not second, Sami. PVIFA. So this is PVIFA, 10%. This is 10%, sorry, 6%. So this is 6% and 12 years. Yeah, rotate. Where is rotate? Where is rotate? View. Left, right? Right. Thank you. Okay, so 6%, and then you want to find out for 12 years. So the factor is 8.384. 8.384? 8.384. This is the factor. And you already know present value of annuity is how much? 25,000? So move to 5 and 7. View. Rotate. Left. Again. 5 and 7. Is this the one? Ali, 5 and 7. Yeah? Okay. So problem 4. So first we need to look at problem 4 and then we will shift to problem number 5. Problem number 4 says you need to have 50,000 at the end of 10 years. You need to have 50,000 at the end of 10 years. That means it's the future value. N equals 10. To accumulate this sum, you have decided to save a certain amount at the end of each of the next 10 years and deposit it in the bank. The bank pays 8% interest compounded annually. So I equals 8, and it is end of each year, so it is ordinary annuity. That's easy. Okay. Then it says how much will you have to save each year to the nearest dollar. So you need to find out R. Yes. R. ठीक है, कर लेंगे यार, आसान है. Okay. It's the same as this one. ठीक है, only the figures are different. बस सिर्फ figures different है. और दूसरा ये कि this is
This is the question for future. Over here there will be a future value of annuity equals R FVIFA. I is 8% and years are 10. बस सिंपल. इसको जिस तरह इसको आप करेंगे डिवाइड बाय ये कर देंगे आर आ जाएगा, यहां पर आप डिवाइड बाय इसको करेंगे तो आपके पास आर आ जाएगा. ठीक है, सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज प्रॉब्लम 4 above, same data except that you deposit a certain amount at the beginning of each of the next 10 years. Okay, how much will you have to save each year to the nearest dollar? So that means you need to find out R. ठीक है, it's the same thing but you will add 1 plus I. अब मतलब वही ना, ऐड का मतलब इसके अंदर आ जाएगा, कहने का मतलब इंग्लिश का ये मतलब था, इसका वो मैथ्स वाला मतलब नहीं था ऐड. Okay, so that's it, done easily. Okay, 7, you have been offered a note with 4 years to maturity. You have been offered a note, एक नोट आपको दिया with 4 years to maturity, 4 साल रहते हैं इसमें. ठीक है, 4 years to maturity. Okay, which will pay 3,000 at the end of each of the 4 years. So once again it is annuity, ordinary annuity, and R equals 4,000, sorry 3,000. 3,000. The price of the note to you is 10,200. The price of the note to you is 10,200. What is the implicit compound annual interest rate you will receive to the nearest whole percent? So you need to find out I. ठीक है, I को कैलकुलेट करने का अब तक तरीका नहीं बताया हुआ. So hold your horses. आज हो जाएगा, नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल हो जाएगा. ठीक है, I और N अब तक फॉर्मली आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया हुआ. So hold your horses. ठीक, ओके, बाकी क्लियर है. So let's move on with today's work. इधर तक किया हुआ है, सही है, आसान है यहाँ तक, फिलहाल आसान है, सही है. वो जो मुश्किल जो चीज़ें थी ना वो अच्छा चलिए. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. क्या कहना सही? क्लास का बारिश होने देना यार. So this is the last topic. Class, this is the last topic from this chapter. Plus we need to do I and N today. ठीक है, so we will cover this one. This is something which you have already covered in your maths course. किया हुआ है ना? So we will hardly take 5 minutes for that. Then we will start with I and N. So when we do I and N, your problem will be solved. Okay, now let's start. Steps to amortize a loan. Now how do you amortize a loan? You will have to make a table, amortization table. You are familiar already with the amortization table. ठीक है, so calculate the payment per period. First you need to find out how much you need to pay per period. This is the installment, or in other words this is R. R को find out कर लेंगे पहले, फिर क्या करेंगे? Then find out the interest in period T. Now when you pay R, find out the interest. Interest क्या होगा? जितने पैसे रह गए देने के लिए, जितने पैसे आपके पास रह गए, आपका कर्जा जितना रहता है उसके ऊपर you will add interest, मतलब उसके ऊपर you are apply interest and you find out the interest amount. और फिर आप जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे where you will find out principal payment. अब इसके ऊपर प्रिंसिपल आपने कितना वापस करना है. अगर आपकी 10,000 की इंस्टॉलमेंट है और उसमें कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का है तो वो हटा दें, जो हट गया वो बाकी सारा का सारा प्रिंसिपल की पेमेंट, तो आपका प्रिंसिपल भी अगले साल कम हो जाएगा. फिर अगले साल जब आप इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे तो नए प्रिंसिपल पे अप्लाई करेंगे विच विल बी लेसर देन दी प्रीवियस ईयर. इंटरेस्ट जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट की उसमें से आप हटा देंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, सो यू विल गेट दी प्रिंसिपल पेमेंट. ठीक, एंड इट्स रेनिंग रियली हार्ड. कैन यू हियर इट? ओके, बहुत मजा आएगा, अभी जाएंगे बात. ठीक, क्लास के बाद, क्लास के बाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट जी, लेट्स स्टार्ट क्लास.
Let's start with this one. Let's start with this one. Julie Miller, pay attention class. Julie Miller is borrowing 10,000 at a compound annual interest rate of 12%. ठीक है? 10,000 at 12%. Amortize the loan if annual payments are made for 5 years. 5 years. N equals 5. ठीक है? Amortize the loan if annual payments are made for 5 years. हर 5 साल आपने पेमेंट करनी है. And normally payment is done at the end of the year. Okay? सही है? End of the year हो गया. अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने 10,000 का लोन लिया. ठीक? कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है? 12%. सो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट कि ये जो 10,000 है, ये जो 10,000 आज आपने लिया, इसके कितने, इसको आपने कितने पैसे इसको देने होंगे, आर कितनी वो इंस्टॉलमेंट करनी होगी. सो यू नीड टू फाइंड आउट द इंस्टॉलमेंट फॉर दैट. ठीक है, आपने इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है. सो यू विल गो फॉर PVA, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे कहा था कि PVA इक्वल्स R इंटू PVIFA विद I एंड N. सो PVA इक्वल्स, टुडे द अमाउंट इज 10,000, यू आर बोरोइंग 10,000 टुडे, ये तो आज के अमाउंट हो गया. अब आपने इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट करना है. एंड यू नो PVA इक्वल्स R इंटू PVIFA. सो PVIFA एंड इट्स 12% एंड 5. सो यू विल फाइंड आउट फॉर 12% एंड 5. इसका फैक्टर फाइंड आउट करें. Go to the table and find out the factor. 3.605 देखें दोबारा, यानी बस यहीं से इसको कंटिन्यू करें, यहीं से कंटिन्यू करें. सो कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, इट्स 3.605. सो इट्स R इंटू 3.605. ये अमाउंट आपके पास आ गया. इसको इधर ले जाएं, यू विल गेट द वैल्यू फॉर R. सो देयरफॉर R इक्वल्स 10,000 डिवाइड बाय 3.605. सो द फर्स्ट थिंग इज डन. द फर्स्ट थिंग इज डन. आपको R पता चल गया. अब R पता चल गया, अब इसका टेबल बनाना है, अमोर्टाइजेशन टेबल. ठीक है, अब आप हर साल 2,774 रुपए देंगे इसको. सो यू विल गिव 2,774 एवरी ईयर. सो नाउ यू हैव अ टोटल ऑफ 5 years. 1 2 3 4 5. हर साल R वुड रिमेन सेम, विच इज 2,774. ओके, ये ले. अब पहले साल में जब इंटरेस्ट लगेगा तो वो आपके ओरिजिनल अमाउंट पे लगेगा जो आपने उससे बोरो किया. आपने कितना बोरो किया उसे? 10,000. ये जो बोरो किया. सो योर प्रिंसिपल इज एक्चुअली 10,000. ओके, अब जब पहले साल आपने 10,000 लिया, ठीक है, तो वो 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगा कितना? 12%. ओके, 12% इंटरेस्ट लग गया. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? जी 1,200. एंड यू हैव पेड एन इंस्टॉलमेंट ऑफ हाउ मच? इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,774. इसमें से इसको माइनस कर दें तो जो बाकी पैसे आपने दिए वो प्रिंसिपल पेमेंट. ठीक. सो 1,200 माइनस 2,774, 1,574. यह आ गया. अब अगले साल के लिए प्रिंसिपल वुड बिकम 10 माइनस 1,574 इक्वल्स 8,426. अब जो नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो इस पर लगेगा. सो 12% ऑफ दिस अमाउंट. कम ऑन क्विकली क्विकली जल्दी. $1,011 and you've paid installment of 2,774. So that means the remaining amount is your principal payment, which would be equal to 1,763. For next year, your principal will further reduce by 1,763. So 1,763 reduce कर दें इसको. 8,426 minus 1,763. 6,663.
3। अब इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा 12%, विच विल बी इक्वल टू 799। इंस्टॉलमेंट आपने पे की 2774 माइनस 799, $75, 1975. Calm down. No, don't do it. Now be deducted from your principal amount. So your new principal would become 6,663 minus 1975. J. 4,688. Now your interest will be charged on this amount. So 12% of 4,688. 562. You've paid 2,774 minus 562 principal payment. Okay, so your new principal would become 2,774 minus 2,212. Sorry, 4,688 minus 2,212. Your principal amount would be 5. Video stopped है? इसको let's resume class. Let's resume. Pay attention. Shh. Pay attention. Okay, so 2,212 will be deducted from your previous principal. So your new principal is 2,473. 2,476. So your interest would be 12% of 2,476. 297. So your principal payment should be 476. Okay? 1 रुपए का फर्क आ रहा है राउंडिंग का, ठीक है? डन? डन? ओके, पॉज कर दें इसको. ओके, इसमें सिर्फ 2 चीज़ आपको. So there are 2 things which you should be able to do over here. Okay, so now over here in exam I'll be asking you 2 things. I'll be asking you about the total interest amount. कि ये जो आपने लोन लिया ना 12,000 का, इस 12,000 में 12,000 का लोन था, सॉरी 10,000 का, जो 10,000 का लोन था इसमें आपने इंटरेस्ट टोटल कितना पे किया, ठीक है? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच यू पेड. ठीक, हाँ, ये सबको जमा कर देंगे. सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच यू पेड सम. अच्छा, आपने लिए 10,000, तो टेक्निकली अगर 10,000 का लोन लूंगा तो वापस कितने करूंगा? लेकिन असल में तो वो 10,000 ही वापस करूंगा ना, और साथ इंटरेस्ट दूंगा. इंटरेस्ट मैंने कितना वापस किया? ये वापस किया, ये मैंने इंटरेस्ट दिया. तो ये जो मैंने प्रिंसिपल वापस किया, ये जो मैंने प्रिंसिपल वापस किया, ये दिस शुड ऑल्सो इक्वल टू 10,000. ये इसके बराबर होना चाहिए जो प्रिंसिपल मैंने लिया था, जो मैंने पैसे उससे लिए थे. सो दिस शुड बी 10,000, मोर और लेस 1 और 2 रुपी, वो जो राउंडिंग का डिफरेंस है उसकी वजह से. ठीक है, तो फिर आपको ये साफ पता चल जाएगा कि आपने अगर 10,000 का कभी लोन लिया तो उसमें आपने 10,000 वापस किए, ऊपर इंटरेस्ट कितना वापस किया. ठीक है, ये आपने इंटरेस्ट वापस किया, ये आपका प्रिंसिपल है जो आपने वापस किया, 5 सालों में आपने वापस किए, ये आपकी इंस्टॉलमेंट है जो बन रही है. गॉट द आइडिया क्लास? ओके, सो दिस इज इट एंड दिस इज डन. वी आर डन विद दिस वन. सो आई गेस देयर इज हार्डली वन थिंग लेफ्ट इन दिस चैप्टर. वो आपको कराता हूँ एंड देन वी आर डन विद द चैप्टर. यू कैन एंजॉय द रेन देन. Okay, why is it useful? Why is this amortization useful? It determines interest expense. मुझे पता चलता है कि मैंने कितना इंटरेस्ट दिया है इस पूरे लोन की उसमें. ठीक है, ओके. अगर अदरवाइज देखा जाए, अदरवाइज you got a loan for 10,000 and you paid back this much, 2,774 multiplied by 5. ये आपने वापस किए, 2,774 multiplied by 5, ये आपने उसको वापस किए. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने कितना 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, बाकी जो है वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. ठीक, ये भी हो गया. सो इट डिटरमिन्स इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट एक्सपेंस इज मे रिड्यूस टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म. रिमेंबर,
इंटरेस्ट एक्सपेंस किस लिए इस्तेमाल होता है? टैक्स को कम करता है, याद है ना, टैक्स डिडक्टिबिलिटी में इस्तेमाल होता है। इट्स अ परमिसिबल एक्सपेंस जो कि आप माइनस करते हैं, फिर आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। सो दिस इज समथिंग गुड विच यू कैन गेट फ्रॉम हियर। इट कैलकुलेट्स डेट आउटस्टैंडिंग। अगर मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो बाकी मेरा कर्ज कितना रह गया? मेरा बाकी कर्ज रह गया ये, ठीक है, 8,426 रुपए कर्ज रह गया। आप ये नहीं कहेंगे कि 2,774 वापस कर दी 10,000 में से तो मेरा कर्ज इतना रह गया, नहीं, मेरा कर्ज इतना रह गया क्योंकि मैंने कुछ इंटरेस्ट भी दिया है। द क्वांटिटी ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट में बी यूज्ड इन फाइनेंसिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। नाउ दिस आउटस्टैंडिंग डेट इज यूज्ड इन फाइनेंसिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द फर्म। जो मैंने रोज की एक्टिविटीज कर रहा हूं, मुझे पता चलता है कि मैंने कितने पैसे देने हैं, ताकि मुझे पता हो कि इतने देने हैं, मेरे दिमाग में होगा कि इतने पैसे मैंने देने हैं, सो आई शुड एक्ट अकॉर्डिंगली कि इतने पैसे और दूंगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द स्लाइड्स। देयर आर टू थिंग्स विच वी नीड टू कवर, I and N, which are not in the slides, so we will move on to the book, ठीक है। सो लेट्स गो टू द पोर्शन विच टॉक्स अबाउट I and N. इट्स अ वेरी ब्रीफ वन। आपको अगर मैथ्स आती है तो ये बहुत आसान है, अगर मैथ्स नहीं आती तो थोड़ा सा शायद आपको इस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट I and N ओवर हियर। Let's zoom in. Okay, we've done PVA, FEA, I and N की calculation is given. Rule of 72. Okay. इसको जरा पॉज कर दें आप। Let's find it out first. Class pay attention. Perpetuity is like an ordinary annuity. लेकिन इसमें क्या होता है? Whose payments or receipts continue forever. खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। ऐसी क्या चीज है यार? नहीं, पेंशन आप जब इफ हाँ टिल योर डेथ, आफ्टर 10 years, आफ्टर योर डेथ इट विल स्टॉप, ठीक है। PIA वाली okay, so let's not talk about that. So perpetuity is more of a theoretical concept, but when we talk about businesses, so businesses would actually exist forever, na? So if a business is giving you return and in case that return is same, क्योंकि देखिए एन्युटी में R का अमाउंट सेम होता है, तो अगर उसका डिविडेंड, बिजनेस आपको रिटर्न में क्या देता है? डिविडेंड देता है। अगर वो डिविडेंड सेम रहता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सेम डिविडेंड आपको दे हर साल तो बिजनेस इज फॉरएवर, सो दैट इज परपेचुइटी, ठीक है। अगर लेकिन कंडीशन, अगर डिविडेंड सेम दे, डिविडेंड्स नॉर्मली वुड फ्लक्चुएट, बट देन गुड कंपनीज वुड make such a scenario या would organize it in such a way that dividends keep on either increasing, growing or remains same, steady, ठीक है। वो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे ताकि आपको खतरा ना हो एज इन्वेस्टर्स कि यार डिविडेंड कल कम हो जाएगा, तो आप ऐसी कंपनी को चूज करेंगे, फर्म को, जो कि डिविडेंड कॉन्स्टेंटली दे रहा है और सेम अमाउंट से दे रहा है, सो इट्स द सेम, सो दैट आंसर्स द क्वेश्चन कि हाँ सेम है तो ये परपेचुइटी है। फॉर्मूला इसका क्या होगा? द फॉर्मूला इज दिस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी वुड बी इक्वल टू R डिवाइड बाय I, बस सिंपल फॉर्मूला। R इज द अमाउंट ऑफ पेमेंट्स विच यू आर गेटिंग और पेइंग डिवाइड बाय द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये भी हो गया क्लियर। एक और चीज थी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, सुनो जी जी समी, इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। अच्छा समी, गुड क्वेश्चन, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे। फ्यूचर वैल्यू कब की फाइंड आउट करूं समी? ठीक है, तो हमने तो ये कहा कि इट इज फॉरएवर ना, फॉरएवर, तो फिर फ्यूचर वैल्यू कहां पे आ गई? नो फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, टर्मिनेशन तो कहीं है ही नहीं इसकी, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू। ओके, गुड क्वेश्चन जी, ठीक, ये भी हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग। कल किसी ने कहा कि सर अगर डेली भी है और डेली से ज्यादा आर्ली कहीं पे कर दूं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है? आर्ली, जरा सोचें, आर्ली अगर हो गया, अली ने कहा था, तो वो तो फिर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, और अगर पर मिनट कर दूं
पर सेकेंड कर दूं, ठीक है? होता नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्चुअल आइडिया, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वंस अगेन इज अ कॉन्सेप्ट, डज नॉट हैपन, इट्स अ कॉन्सेप्ट, ठीक है? और ये कहता क्या है? लेट्स लुक एट इट. कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कहां पे था? एनीबॉडी रिमेंबर्स? It was by the end of this chapter, so let's go to the end of the chapter. Mixed flows, compounding more than once a year, continuous compounding. So in practice, interest is compounded continuously, ठीक है? Therefore it is useful to consider how this works. This is a general formula. याद है किसी को? हमने कल किया था. Future value equals present value into 1 plus I divided by m and multiply by m. ये हो गया. Okay. अब अगर compounded continuously हो at a rate of I%, so this is the formula. Future value equals present value I 1 plus I नहीं, it will be which is equal to 2.71. आपके कैलकुलेटर्स के अंदर होगा. When you press E, you will get the value from there. It would be equal to 2.71828. सही है? And that's how you will find out the future value if it is continuously compounding. सही है? Clear है? And alternatively you can transpose the form. Future value IN, future value equals present value, ठीक है? वहां पे था 1 plus I ना, और फिर I को डिवाइड बाय M और फिर N को मल्टीप्लाई बाय M. अब आप क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर E आपके कैलकुलेटर के अंदर है, ठीक है? एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.71828 यही है. सही है? गॉट द आइडिया? ये भी क्लियर है? इसके भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो डू नॉट पैनिक. अच्छा, नाउ लेट्स गो टू I and N. I and N यहाँ पे नहीं है. N हम लोगों ने मैंने आपको बता दिया था लॉग के थ्रू, एंटी लॉग, लॉग mn, याद है? लॉग mn, उसको आप एंटी लॉग कर देंगे, सो यू विल फाइंड इट आउट. I के लिए क्या करना पड़ेगा? इफ I इज नॉट गिवन इन एनी इक्वेशन, जी, एनी आइडिया? इफ I इज नॉट गिवन इन एनी इक्वेशन, हाउ डू यू फाइंड इट आउट? एक वक्त में एक बंदा, एक वक्त में. फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू into 1 plus I raised to power of n. If this is not given, तो हमने तो कह दिया कि लास्ट टाइम कर दें 1 plus I. इसके लिए क्या करूँगा? फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगी तो वो तो मैं इधर ले जाऊंगा. एक मिनट, ऐसे करते हैं, इसको तो इधर ले जाऊंगा ना. इसके लिए क्या करूंगा? ये बन जाएगा फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 1 plus I raised to power of n. हाँ, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? सही है? ये कैंसल आउट हो जाएगा. आगे चलें. 1 plus I. अरे अब क्या मसला है? हैंग हो गया. Okay, let's try it in your assignment today, and then on Monday we can discuss the assignment, the questions only, not something theoretical. In case if you do not understand any of the theory or any of the formula or any of the concept, we can do that again as well. So now we have 3 quizzes left. 3 हो गए हैं आपके क्विज. 1 2 3. रेडी रहें. किसी भी दिन जिस तरह मौसम अच्छा हो, आपके पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, मैं कहूँगा गुड, आज नहीं पढ़ते, आज क्विज लेते हैं. ओके,